Om Shanti, good morning. Today, students, will start a very good chapter on set theory mapping and binary operation. In this chapter, we will do some questions, and when solving the questions, we also discuss the related concept. Let's start without wasting time. The number one is it is given that let f and g are to r. They are two functions. F of x, g of x are two functions. What is R to R? R arrow R. This is the domain and this is the range. Domain means the input, range means one type of output. Input, in the input section you can take all the real numbers, and in the output section you will take all the real numbers. Means domain and range are equal given. So first fx is given 2x minus 3 and gx is given x square plus 5. Find out g of f of 2. So first find out f of 2. F of 2, put the value 2 in the place of x. So here, which is equal to 2 into 2 minus 3, it came 1. How much? 1. So now g of 1, f of 2 value कितना आ गया? f of 2 का value आ गया हमारा 1 आ गया. Put the 1 value, f of 2 value where you have to put the value you have to put in g of 2. This is f of 2 came how much? 1 came. And this value I will put here. Where I'll put here. If I'll put here, then it is simply how much it will come. So what is the g of x? And g of x value is given nothing but your g of x value is given x square plus 5. So x square plus 5 in the place of x I can write 1 square plus 5 equal to, it will come c. So this is the option B is your correct answer. Option B is your correct answer. 6 is our correct answer. Now come to the number 2 question. Which of the following is bounded below but not bounded above? It is a very basic question. And what is bounded below and what is bounded above, that one we'll see properly. So in this case, set all are, see the options, all are the number systems. So basic number system is n, then after that your integer, then the rational, then the real number. So bounded below but not bounded above, तो ये above वाला है, सबसे below है ये. So which is the answer? नेचुरल नंबर. ये बोला सबसे छोटा वाला सेट कौन सा है, इसका मतलब है n. ठीक है, n is our smallest one. The next question is find f inverse x. Find f inverse x. What is the procedure? Is very simple procedure. See now, f inverse x को निकालना है. ठीक है. So first this is y. Take fx equal to y. It is given 3x minus 4. And to find out the inverse, you have to change, convert in terms of x. So कैसे करेंगे इसको? इसको हम ऐसे ले सकते हैं y plus 4 equal to कितना? 3x. ऐसे ले सकते हैं. That implies x equal to came how much? X came your y plus 4 by 3. X came how much? Y plus 4 by 3. This x now just swap the value. In the place of x you write f inverse x, and the place of y. So now we got the f inverse x equal to x plus 4 by 3. Just swap the value. Swap का मतलब क्या है? Just change the value. x का जगह क्या लिखना है? f inverse x, and y का जगह क्या लिखना है? x. So our answer came how much? x plus 4 by 3. This is the option A. x plus 4 by 3 is our correct answer. Is the, क्या करना है? x का टर्म में लिखना है. x इक्वल जितना आएगा वही हमारा आंसर है, मगर आंसर किसने में होगा? y का वैल्यू में. x का वैल्यू क्या हो जाएगा? f इनवर्स x हो जाएगा. विल रिप्लेस x एज f इनवर्स x एंड y एज x. ठीक है, तो x को क्या रिप्लेस करना है? x को f इनवर्स x में रिप्लेस करना है, एंड y को
एक्स में रिप्लेस करना है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, f is a function from z to z, we define as fx equal to x square plus x minus 2, then f of minus 2। तो फर्स्ट पुट इन द प्लेस ऑफ x, क्या पुट करना है, x का जगह -2 पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारा, -2 का स्क्वायर -2, देन माइनस ऑफ, आंसर क्या है 2 है, माइनस ऑफ क्या है 2 है, ब्रैकेट दे दो, तो ये आ जाएगा 4, ये माइनस 4, आंसर कितना है 0। सो एफ ऑफ -2 का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 0 हो गया। ठीक, देन नेक्स्ट अगेन एफ ऑफ 0 का वैल्यू, क्योंकि क्यों 0 क्यों, एफ ऑफ -2, एफ ऑफ -2 का वैल्यू कितना आ गया 0, तो 0 कहाँ पुट करना है, इधर पुट करना है, एफ ऑफ -2 का वैल्यू में 0 पुट करना है, फिर से 0 कहाँ पुट करेंगे, इधर ही वही इक्वेशन में पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, ये ओरिजिनल इक्वेशन ना। अभी x का वैल्यू कितना आ गया यार, x इज कितना है, ये x का वैल्यू इज fx, सो हियर f0 इज हाउ मच केम, f0 केम योर 0 + 0 - 2, आंसर कितना आ गया -2, आंसर कितना आ गया हमारा -2। ओके ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम n to n, सीक्वेंस बोला है, सीक्वेंस मतलब है सीरीज, इन ए सीक्वेंस n to n, इट इज नॉट a sequence, n to r, r to n, so see the sequence, so starting is natural number, the next is your whole number set w, then integer, then q, then your real number set, so n to r, your option b is the series, so starting from n and ending at r, why, it is told real number, so start नेचुरल नंबर से होगा, रियल नंबर से एंड होगा, बिकॉज नेचुरल नंबर इज द बिगेस्ट सेट, ओके, सॉरी रियल नंबर इज द बिगेस्ट सेट। योर व्हाट इज गिवन, एक्स ABCD वाई इतना है, सो एक्स यूनियन वाई इज हाउ मच, यूनियन का मतलब दोनों में होगा, और कॉमन भी हो सकता है, कॉमन भी नहीं हो सकता, यूनियन को सबको ऐड करना है, यूनियन मतलब सबको ऐड करना है, इसमें ABCD है, इसमें 4 5 6 7, कौन सा ऑप्शन सारे है, सी ऑप्शन में हमारा सारे है। ठीक है, देन Z denotes the set of integers and ABC are its subset, A belongs to Z where x is divisible by 2, V belongs to Z, Z मतलब integer, set of integers, x is divisible by 4, C is divisible by 6, देन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब इंटरसेक्ट का मतलब A और B और C, सॉरी एंड इंटरसेक्शन का मतलब एंड A एंड B एंड C, दैट मीन्स x शुड बी डिविजिबल बाय 2 4 6, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दिस सिंबल का लिटरल मीनिंग है एंड यूनियन का मतलब क्या होता है, और होता है, सो x इज डिविजिबल बाय 2 4 एंड 6, तो कौन सा नंबर 2 4 6 को डिवाइड करेगा, तो उसका एलसीएम निकाल देंगे, तो 2 4 6 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 12, दिस इज योर ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। इफ इट इज गिवन व्हाट, अंडरस्टूड, दिस इज कॉल्ड A intersection B intersection C. If it is given A intersection B, if only A intersection B, so what should be the answer? Answer is 4. If it is given B intersection C, then the answer is again 12. We will take the LCM. हमको LCM लेना है, ठीक है? Okay. The next question we will see now. See this question. It is a very tricky question, but easy one. F of x value is given. F of g of x is x minus 2. So what is the value of gx? gx का वैल्यू कितना निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो fx इज हाउ मच, दिस मच, f ऑफ gx का वैल्यू कितना है, x minus 2, ओके, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल गो फ्रॉम द ऑप्शन, हम ऑप्शन से जाएंगे, आई विल पुट द बी ऑप्शन, आई एम पुटिंग द
बी ऑप्शन क्या है, जी एक्स, आई एम टेकिंग जी एक्स, इतना हो सकता है। तो जी एक्स का वैल्यू में इधर पुट कर दिया, इधर पुट कर दिया। अगर ये वैल्यू डाल के हमारा इतना आ गया तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री कितना डालेंगे, 3x में 3 इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस वन। तो ये तो माइनस नहीं आएगा, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक, मैं सोचता हूँ ये माइनस वाला ऑप्शन है, ए को डाल देता हूँ। ये डालेंगे तो 3 होल इंटू एक्स माइनस थ्री बाई थ्री प्लस वन। किसका वैल्यू, एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू, इसको इधर डालते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो 3 कैंसिल आउट हो गया, एक्स माइनस थ्री प्लस वन, तो ये कट होकर कितना आ जाएगा, एक्स माइनस टू। यह हमारा आ गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एक्स माइनस टू। सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन, the shaded region in the following Venn diagram represents। जो शेडेड में है, ओके, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग। सी नाउ हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बहुत आसान सा तरीका है। सो फर्स्ट सी दिस ऑप्शन, दिस वन एंड दिस वन, शेडेड रीजन। ओके, ए इंटरसेक्शन बी, this is your A intersection B and this is your B intersection C। ये सुनो, तो A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, ये ऑप्शन है हमारे पास। इन दोनों का क्या है, यूनियन है, दोनों मिल गए हैं कि नहीं, इन दोनों का यूनियन है। ये कौन सा सेक्शन है, A इंटरसेक्शन B, ये है B इंटरसेक्शन C, दोनों मिल गए हैं। तो मिलेंगे जब हम यूनियन देंगे, जब दोनों मिलते हैं तो हम यूनियन देते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। Now see the question, A B C is given, so A union B intersection C। पहले A union B करेंगे, तो A union B करेंगे तो कितना आएगा, 1 3 5 4 आएगा, 3 के बाद 4 5 7 9, ये आ गया हमारा A यूनियन B का वैल्यू आ गया, इतना आ गया। उसके बाद इंटरसेक्शन सी, इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो सी का वैल्यू, इनमें और सी में कॉमन कौन सा है, कॉमन है 1 3 4 एंड 9, इतना कॉमन है। तो आंसर क्या होगा, 1 3 4 9, ए यूनियन बी। ओके, एंड 1 is also present, 1 3 4, yes। So intersection C means it is common in A union B with C. So 1 3 4 9, 1 3 4 9. So option D is our correct answer. None of this. Option D our correct answer because the option is not present. Okay. Now next question is function equal to R to R, G equal to R to R means R to R means the domain is f is a function, f of x is a function where domain includes all the real numbers and the codomain or range also include the real number. Similarly, g of h is a function, it goes from real to real means domain is in real number, all the domains are in real number and all the ranges are also real number, and h is like that. This is the condition given, and next is your, what is your next is your fx is given x square, gx is given 10x, hx is given log ex or ln x, you can write. Then find the value of h of g of x। तो फर्स्ट इसका मतलब क्या है, h of g of f of x ऐसे ब्रैकेट में दिया जाता है। ठीक है, तो पहले हम fx निकालते हैं। इट इज गिवन log ex गिवन। ओके, तो fx इज गिवन हाउ मच, x स्क्वायर, एंड x का वैल्यू कितना दिया है बेटा, रूट ओवर ऑफ पाई बाई 2 है। x is given root over of 5/2. So now I am putting fx, first I am finding out fx। तो बेटा x स्क्वायर का वैल्यू, x का वैल्यू इतना है तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये पाई बाई 2 हो गया ना, x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया हमारा, पाई बाई 2 आ गया। सो f of
एक्स हाउ मच केम π/2, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया हमारा π/2 आ गया. सो नाउ एफ ऑफ एक्स वैल्यू इज π/2, देन कम टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. सो जी ऑफ π/2 कितना आएगा, तो जी का वैल्यू कितना 10, तो 10 π/2 यू नो इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी में डाल दिया, 10 π/2 कितना डाल दिया इन्फिनिटी. सो जी ऑफ 10 π/2 हो गया इन्फिनिटी. देन एच ऑफ जी ऑफ π/2 कितना आएगा, एच ऑफ जी ऑफ π/2. ओके आप लोग देख लीजिए एच ऑफ जी ऑफ π/2 कितना आएगा. सो ये हो गया एच इन्फिनिटी कितना आएगा, एच का वैल्यू क्या है log ई एक्स, log ई एक्स. सो log e in the place of x I will write what, infinity. What I will write, infinity I will write. Okay, and it will also come out log e infinity, it will come infinity, which is your option D. ये क्या इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा जिस, एंड विच इज योर ऑप्शन डी. क्लियर, ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी. तो दिस इज द मेथड. ओके, आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट ऑफ a set having n element is equal to how much, 2 to the power n. इसको याद रखना है. if there are 3 elements it will be 2 to the power 3. तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, नंबर एलिमेंट इन पावर सेट इज 2 to the power n. okay, so now we'll go to the next question. This is your next question. a minus b union, okay, union b minus a. तो a माइनस बी का वैल्यू क्या है, ये मान लो a सेट है, ये एक b सेट है, ये a सेट है एंड दिस इज योर b सेट. एंड इन दोनों के बीच में माइनस, फर्स्ट a माइनस बी मतलब a में है b में नहीं है, तो a में कौन सा पार्ट है, ये वाला a का पार्ट है. एंड b माइनस का मतलब b में है a में नहीं है, ये रेड वाला पार्ट. ठीक, इसका यूनियन मतलब ये इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बीच वाला पार्ट, तो क्या आ जाएगा हमारा, a यूनियन b से सब्ट्रैक्ट कर लो a इंटरसेक्शन b, तो ऑप्शन सी. ए यूनियन बी टोटल पार्ट हो गया, ये पूरा टोटल ए यूनियन बी. उससे अगर मैं मिडिल वाला पार्ट कट कर लूँगा तो ए माइनस बी आ जाएगा और बी माइनस ए आ जाएगा. आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. It is given that a is a subset equal to b. What is the meaning of that? If it is given only a is subset of b, मतलब a b से छोटा है और the structure is like this, ये a हो गया, ये b हो गया. मगर a और b सबसेट इक्वल टू मतलब दोनों इक्वल सेट है, सबसेट भी है और इक्वल भी है, दोनों इक्वल सेट है. ये a सेट है, ये b सेट, दोनों का सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, कुछ एलिमेंट बचेगा ही नहीं, तो कितना हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा. आंसर ऑप्शन डी जवार करेक्ट है. वेरी गुड क्वेश्चन. a is 26, b is 109, these are the elements. okay, find the value of a cross b union c. here a cross b union c. ठीक है, इसको निकालना है, तो पहले b union c निकाल दो. तो b union c निकालेंगे तो कितना आएगा, फाइंड आउट द वैल्यू b union c. सो b union c will come how much, 109. कितना आएगा, ये आएगा 109. सो 26 और 109 के बीच में क्या होगा, तो बी यूनियन का वैल्यू कितना आ गया, तो हम क्रॉस करेंगे तो ये आ गया 26 क्रॉस 109. तो कितना एलिमेंट आएगा, 2 × 3 6 एलिमेंट आएगा. ओके, जब क्रॉस होता है इसका एलिमेंट 2 है, इसका 3 एलिमेंट, तो टोटल 6 एलिमेंट आएगा. तो कितना आ गया हमारा, देखो 6 एलिमेंट कहाँ है, यही सबसे ऑप्शन 2 1 2 0 एंड 2 9. ठीक है, then 6 0 6 1 6 9. So option A is our correct answer and is very. Next on the set theory question. In a class of 25 students, 12 students have taken mathematics, 8 taken mathematics but not economics. The number of students who have taken both mathematics and economics are how much? So first see the subjects, mathematics से economics से दोनों सब्जेक्ट एक बना लो फटाफट वेन डायग्राम. इसमें वेन डायग्राम बहुत काम आएगा. ठीक है, अगर वेन डायग्राम नहीं बना सकते तो एक फार्मूला क्या है बेटा, हमारा फार्मूला है ए यूनियन बी का वैल्यू क्या है, ए
मोड मतलब ए का वैल्यू प्लस बी का वैल्यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी. Okay, why giving this one is multiple, take it positive, all are positive. So 25 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट कितना है 25. इसमें से 12 मैथमेटिक्स में है, 8 12 टेकन मैथमेटिक्स, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स. इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन. सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं इधर वेन डायग्राम बता देता हूँ, फटाफट हो जाएगा. तो ये मैथ आ गया, ये इकोनॉमिक्स आ गया. तो 12 मैथमेटिक्स में है, फिर से लिख रहा है 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, मतलब एम माइनस ई का वैल्यू दे दिया कि एम माइनस ई का वैल्यू क्या है 8. तो एम माइनस ई का मतलब क्या है, मैं तेरा कलर चेंज करके दिखा देता हूँ. ओनली ये वाला सेक्शन है ना, ये इसका वैल्यू क्या है 8 है. तो बीच में कौन रह गया, 4 रह गया, क्योंकि पूरा एम सेट का वैल्यू क्या है, पूरा एम सेट का वैल्यू होता है, ये पूरा लेंगे ना, 12 दिया था, तो 4 कहाँ आ गया, बीच में आ गया. बीच का मतलब एम इंटरसेक्शन ई में आ गया. ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड आर कितना, 4 आ गया आंसर. नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स आर हाउ मच, दैट इज योर 4 आंसर. आंसर इज 4, ऑप्शन बी. वेरी इजी. यस, I have known. So I am giving some concept. I am giving some concept here. See now. So in this batch, if it is a set A and another set B is there, A and B are two sets are there, and they are intersecting each other in this region, and this region is common to both A and B. ये दोनों में कॉमन है. तो हम A जो सेट है, A सेट को क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, ये वाला है A माइनस बी. ठीक है, ये ओनली ए में है. ओनली ए को क्या बोलते हैं, ए माइनस बी. ओनली बी को क्या बोलते हैं, बी माइनस ए. मतलब दैट रीजन इज ओनली प्रेजेंट इन बी. दिस इज ए का रीजन है, ओनली ए का रीजन, नो बी का रीजन है ही नहीं. इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ओनली ए. ऐसे लिखता है ना, इसका मतलब क्या होता है, ए माइनस बी. ये क्या होता है, ओनली बी, एंड द मीनिंग इज दैट बी माइनस ए. ओके, सो वी गॉट दिस मच. सो ए मोड का मतलब क्या है, ए माइनस बी मोड प्लस ए इंटरसेक्शन बी. सिमिलरली बी का वैल्यू क्या है, बी सेट में कितना कौन कौन सा रहते हैं, इसमें बी माइनस ए रहता है प्लस ए इंटरसेक्शन बी जो है, बी इंटरसेक्शन है वही है, तो मैं लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी. ये होता है जनरल कॉन्सेप्ट. दिस इज योर जनरल कॉन्सेप्ट. ओके, so now we'll go to the question. A and B, two sets having 5 common elements, then the number of elements in A cross B is how much. दोनों में 5 कॉमन एलिमेंट है. द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस बी, इसमें कितने एलिमेंट हो गए, इसमें कितने एलिमेंट हो गए. ओके, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज, दिस इज योर 5 इंटू 5, कितना आएगा 25. ऑप्शन देखेंगे 25 किसमें है, ये वाला ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट, वेरी गुड क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज टेलिंग दैट ABC are subset of a set X, how many the following are false. स्टेटमेंट कौन सा false है. See now, A, B, C are subset of set X. So A, this is B and this is C. Like this I have done A, B and C. A minus A minus B, A से A minus B माइनस करेंगे. A क्या है, ये A है, उससे A माइनस बी माइनस कर देंगे, माइनस A माइनस बी. तो A माइनस बी का वैल्यू, A माइनस बी कौन सा होता है, ये वाला पर्सन. ओके, तो कौन सा बच गया, A इंटरसेक्शन भी बचना था, है कि नहीं. तो ये क्या दिया गया है, A यूनियन बी, तो ये रॉन्ग हो गया. ठीक, A माइनस बी डैश, ओनली विल सी द ए बी. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी का रिलेशन है, फर्स्ट ऑप्शन, सीधा ऑप्शन, ए बी का रिलेशन देखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा. थोड़ा ए बी आ गया हमारा. ए माइनस बी कौन सा सेक्शन है, अभी पढ़ाया था मैंने,
ए माइनस बी ये वाला सेक्शन है, ठीक है, ठीक, ये वाला सेक्शन। ए कौन सा सेक्शन है टोटल हमारे, इसको थोड़ा कलर कर देते हैं, अलग कलर से चेंज कर देते हैं तो समझ में आसान होगा। ये आ गया हमारा बी, ठीक है। तो ये कॉमन वाला पार्ट आ गया, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो टोटल ए से अगर मैं ये वाला पर्सन कट कर दूं, कितना आना चाहिए था, ये आना चाहिए था हमारा, कितना आना चाहिए था, ए इंटरसेक्शन बी आना चाहिए था, मगर दिया गया कौन सा है, ए यूनियन बी। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट, ए माइनस बी डैश, डैश का मतलब बी में नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे वेन डायग्राम, अच्छा से देखेंगे, ए माइनस बी डैश देखेंगे। तो पहले ऐसे एक यूनियन सेट, मतलब ये सबसे बड़ा सेट है। कौन सा सेट दिया है, इधर एक्स दिया है, एक्स का अंदर दो सेट है, एक का नाम क्या है, पहले में भी दे सकता था मगर डैश का सिंबल नहीं था इसलिए नहीं दिया था, एक्स। तो ये आ गया ए सेट, ये आ गया बी सेट। इन दोनों में ए माइनस बी डैश मतलब बी डैश बी नहीं है, तो ए ये हो गया, टोटल ए ये हो गया। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं बी का कुछ अलग कलर दे देते हैं, ग्रीन वाला कलर, ये बी आ गया, ठीक। तो जितना रेड वाला है ये आ गया हमारा ए, ओके। उससे बी माइनस करना है, तो बी नहीं है, तो बी के छोड़कर ये सारे बी है, बी को छोड़कर बी नहीं है, ओके ओके। सो बी नहीं है का मतलब उससे माइनस करना है ए को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया बी माइनस से। सो हाउ मच विल गेट, बी नहीं का मतलब ये भी सारे आएंगे, नॉट बी मतलब बी को छोड़ के जितने सारे दिया ये सारे आ गए, उसमें से मैंने ए को माइनस कर लिया, आई हैव सब्ट्रैक्टेड ए फ्रॉम बी डैश, और ए से बी डैश मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। If I will subtract a to b dash, then what will get? Think please. So see, I have constructed a good figure now. A को मैंने दे दिया ग्रीन कलर, बी को रेड कलर, एंड जो ब्लू कलर है ये सारे क्या है, बी डैश है। तो बी डैश के अंदर कौन आ रहा है हमारा, ये बी डैश है। बी डैश से मैं अगर ए सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, बी डैश से अगर मैं ए को सब्ट्रैक्ट कर, टोटल ए को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, देन कौन सा पर्सन आ रहा है, आई हैव सब्ट्रैक्टेड ए, ओके। तो कौन सा पर्सन आ रहा है, ये बी आ रहा है, बी आ रहा है कि नहीं। तो आंसर क्या होना चाहिए था हमारा, आंसर बी होना चाहिए था, मगर आंसर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत है, दो गलत आ गया। देन नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे, विल सी द नेक्स्ट ऑप्शन। सो व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। बी माइनस सी कौन सा होता है, ये ए, इसमें तीनों जगह तीनों फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी माइनस सी दिया है, बी माइनस सी मतलब क्या है, बी में होगा सी में नहीं होगा, तो ये वाला पर्सन हो गया, ये हो गया बी माइनस, सॉरी बी माइनस सी है ना, ये नहीं होगा, ये आपका ऐसा इतना बी का पर्सन होगा, ये हो गया बी माइनस। इंटरसेक्शन करेंगे तो कौन सा पर्सन आएगा, बी माइनस सी से करेंगे तो ओनली ये वाला पर्सन आएगा, ठीक है। अगर इसमें मैच कर लेता है तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ये आना चाहिए, ठीक है। ये एलएचएस में हमें कौन सा देखा, एलएचएस में हम देखे इंटरसेक्शन, बाद में इंटरसेक्शन करके हमें मिला ये वाला सेक्शन, कौन सा सेक्शन मिला, हमें मिला ये वाला सेक्शन। फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आराम से देखना, आई एम ड्रॉइंग अगेन। तो कौन सा सेक्शन आ गया, ये एलएचएस वाला का ये सेक्शन आ गया हमारा 1 2 एंड 3, ओके 1 2 एंड 3। कौन सा सेक्शन आ गया, इसका सेक्शन आ गया हमारा ये वाला सेक्शन, कौन सा, ये वाला, ये आ गया ए बी सी। अगर एलएचएस के, ये कौन सा, एलएचएस साइड में, दिस इज इन द फॉर द एलएचएस साइड, एंड फॉर द आर एजेस क्या बोल रहा है, आर एजेस में भी वही फिगर कर लेते हैं, एबीसी का फिगर ड्रॉ कर देते हैं, बड़ा सा एक बॉक्सा बना देते हैं, इसमें ए, ये बी, ये सी आ गया, ये आ गया ए, ये बी एंड ये सी।
फिर क्वेश्चन को देखते हैं। RHS में क्या बोला है। RHS बोला है राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पर्सन है? ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये वाला पर्सन है कि नहीं। ए इंटरसेक्शन सी मतलब हमारा ये वाला पर्सन है, ठीक। उसको माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, तो रह जाएगा ये वाला पर्सन। खत्म बात, आ गया ना। ये आ गया ए इंटरसेक्शन सी, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कौन सा पर्सन रहेगा? ये वाला पर्सन ही रह जाएगा। यू विल सब्ट्रैक्ट, आई विल गेट दिस पर्सन। ओके, so this is our correct option. So how many we have got? We have got two incorrect. Okay, now this is the question. G of x given, half of g of x is given, find f of x. In this case what to do? You put the values, and you will get the answer. Okay, don't see the answer. So if you put, this is the heat rental method, if you put the value here in the f of x, okay, f of x की जगह में कितना पुट करना है? इसका मतलब हाफ ऑफ g ऑफ f of x ऐसा है। तो f of x का वैल्यू कितना रहा? 2x माइनस 3। अगर f of x का वैल्यू 2x माइनस 3 हम डाल देंगे, कहाँ डालेंगे? इधर। अगर ये वैल्यू इतना आ रहा है तो ठीक है, ओके। नहीं तो क्या करेंगे? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू इधर डाल देते हैं। डाल दो, पहले उसको इधर डालो तो कितना आएगा? 2x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 2, इतना आ जाएगा। आ जाएगी नहीं? ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व? 2x माइनस 3 मैंने लिया हूँ, ठीक है। ब्लैंक पेज को जा रहा हूँ मैं, इधर ही हो जाएगा। देखो ये कितना आ गया? 2x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू मैं कितना डाल दूंगा? 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। एक्स का वैल्यू डालूंगा 2x माइनस 3 माइनस 2। तो इधर मैं 2x माइनस 3 कॉमन ले आता हूँ। अगर मैं आई विल टेक द 2x माइनस 3 कॉमन, देन आई विल गेट इन द फर्स्ट सेक्शन, otherwise no require direct, simply you do what you do, this is a plus b का होल स्क्वायर। सो कितना आएगा? 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x, ये कितना आ गया? 2x माइनस 5, ठीक। देन 4x स्क्वायर, ये आ गया 9 माइनस 5 कितना आ गया? 4 आ गया, या माइनस ये क्या 2x था, एंड दिस इज योर 2x, नो 2x इक्वल टू माइनस 14x, कितना आ गया? माइनस 14x। ये जी ऑफ एक्स का वैल्यू। हाफ ऑफ जी ऑफ एक्स कर देंगे। अगर हाफ ऑफ जी ऑफ एक्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा? सारे में इस टर्म में 2 रिड्यूस कर देंगे, मतलब 2 क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो पहला टर्म आ जाएगा 2x स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म आएगा 2, नेक्स्ट टर्म आएगा आपका कुछ गलत हुआ है शायद, 9 माइनस 12, ओके 12x। दिस इज प्लस था, प्लस 2x। अगर प्लस था तो ये आ जाएगा हमारा 10 आएगा। कितना आएगा? हमारा 10 आएगा। तो ये आ गया 5x। आ गया ऑप्शन में? आ गया ना, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो कौन सा? ये ऑप्शन से जाएंगे हम। ये वाला क्वेश्चन हम कैसे जाएंगे? विल गो फ्रॉम द ऑप्शन। प्रीवियसली आई टेकन और one type of question like this, okay। The next question is this one, n का वैल्यू क्या है? 700। n का मतलब टोटल, n का वैल्यू टोटल इतना है, a का वैल्यू इतना, b का वैल्यू, n का मतलब nu मतलब द वैल्यू, ओके। यूनिवर्सल सेट का वैल्यू 700 है। तो फाइंड आउट a dash इंटरसेक्शन b dash। सो a dash इंटरसेक्शन b dash I can write by De Morgan law, this is a union b का होल dash, and it is nothing but u minus
ए यूनियन बी, यू माइनस ए यूनियन बी, यू से ए यूनियन बी को हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। डैश का वैल्यू, सो फर्स्ट आई विल फाइंड आउट ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है, ए मॉड बी मॉड माइनस ए इंटरसेक्शन बी मॉड, तो ए ये दोनों को ऐड कर दो, तो ये कितना 500 माइनस 100 कितना आ गया 400, किसका वैल्यू आ गया, ए यूनियन बी का वैल्यू आ गया, डाल दो। यूनिवर्सल सेट का वैल्यू कितना है 700 माइनस आपका 400, तो आंसर आ गया 300, इसका वैल्यू कितना आ गया 300, क्लियर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज ए माइनस बी का वैल्यू कितना है, ए माइनस बी इज हाउ मच, सो नाउ व्हाट इज फर्स्ट सी ए माइनस बी, तो ए और बी को दोनों फटाफट बना दो, ये आ गया ए, आराम से समझना, दोनों अलग अलग कलर दे देता हूँ, ये ए सेट हो गया ब्लू वाला, ये हो गया बी, ठीक। ए सेट ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी का मतलब ये वाला ए माइनस बी पर्सन हो गया, फिर ए से उसको माइनस करेंगे, ए कौन सा पर्सन हो गया हमारा, ये जो छोटा पार्ट है हमारा ब्लैक कलर ले लेते हैं, ये वाला ए है, ठीक है। उससे फिर ए माइनस बी को हम सबट्रैक्ट करेंगे, ओके, उससे फिर से हम ए से ए माइनस बी सबट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आएगा, ए माइनस बी, ए से ये ए थे, उसमें से ए माइनस बी मैंने सबट्रैक्ट कर लिया, I will get A intersection B. I will get A intersection B. A से अगर A माइनस बी में सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा, A intersection B, तो ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है बी, इट इज रॉन्ग, ओके, इट इज ए रॉन्ग वन। सो टुडे वी हैव लर्न, लगभग हमने 40 क्वेश्चन कर लिया। द नेक्स्ट क्लास विल सी गुड क्वेश्चंस, which questions I have discussed or practiced before you. You also practice like this problem. If any concept clear is not done properly, you can give the comment and I will try my best to make you understand. Thank you. Have a nice day. Om Shanti.